Okay, so let us see here your lesson today, that is motion, and we will see here velocity. Once more, let us see the definition of velocity. When you talk about the speed, it is the distance traveled in unit time. There is no direction mentioned. It is a scalar quantity. Now here, velocity, as you have seen, velocity has direction. It is a vector quantity. So once more, the definition: velocity of a body is the distance traveled by the body in unit time in a given direction. All right. Velocity of a body is the distance traveled by the body in unit time in a given direction. Now we will do about the graphical representation of motion, what we had started in the class. Let us proceed on. Graphical representation of motion. The topic we are going to do, graphical representation of motion, and we will represent this distance covered or the velocity or the acceleration in the form of graphs. At first, distance time graph. Distance time graph. For this, we will take the graph and on y-axis, let us do it. This one x-axis and this y-axis. So on the graph paper, as you do it in mass, we will take time here. Let it be in minutes. And the distance, that is kilometer. Kilometer, let it mark it also. That is equal that 20, 40, and now 60 here. And then for the distance, let us take it as 10 here. $10, $20, $30 like that. And you can see here the change in the position of an object. The change in the position of the object with time can be represented on the distance time graph, adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis and the distance is taken along the y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest, etc. We know that when an object travels equal distances in equal intervals of time, so here the graph that we are going to draw, it is about the uniform speed. That is, the object travels equal distances in equal intervals of time, about the uniform speed. So for uniform speed, this shows that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. जैसे जैसे time बढ़ेगा in equal intervals of time, the distance also, the object move further distance, it moves in equal intervals of time. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line.
जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, it covers, there are different points shown here. Let us see here. This is a straight line. जो भी हमारा ग्राफ आएगा वो इस तरह से जाएगा, and let us mark it also. Point see here, point A, and here point B. यहाँ पर अभी हम लोग लेंगे नहीं, जैसे मान लो कि एक जब कवर कर रहा है, एक देख रहे हो कि यहाँ पर है, चलो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, जैसे 10 किलोमीटर जब कवर किया, वो कितने टाइम में कवर किया? 20 मिनट्स में। 10 kilometers covered in 20 minutes, okay, 20 minutes. Then other 20 kilometers covered in 40 minutes, all right, and other 30 covered in 60 minutes, all right, it is 60 minutes. So is it covering equal distances in equal interval of time as the figure shows? Yes, ma'am. Yes. So it covers equal distances in equal interval of time. यहाँ पर देखो 10-10 किलोमीटर तय कर रहा है, कितने टाइम में तय कर रहा है? प्रति 10 किलोमीटर. In how much time it is covering? 20 minutes. Yes, 20 minutes. And next you can see here, in other 10 kilometers is covered in other 20 minutes. Then again other 10 kilometers is covered in other 20 minutes. So this type of shows uniform speed, and the graph that it will become, that it will show a straight line in this. Okay, so it will show like this. Now next we will see here the portion OB, how to calculate the velocity here. Let us see here. जैसे अब हम लोग लेंगे, there are 2 points shown here. एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लिए जिसको 1 मार्क दिए, और दूसरा पॉइंट हुआ यहाँ पे, और एक पॉइंट B मार्क हो रहा है। ये तो यहाँ पर जिस तरह से लिया है, और एक जो है यहाँ पे है जिसको कि हम लोगों ने B नाम दिया। So let us see here, try to understand. Thus for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. So you can write it also. For uniform speed, यहाँ पे फिगर के पास नहीं लिखोगे, कहीं पर लिख लो, ग्राफ इज अ graph obtained is a straight line, for uniform speed. Next we will see, for calculating for uniform speed, the portion OB of the graph shows that the distance O को हमने मार्क नहीं किया यहाँ पे, this O, portion OB, यहाँ से देखो यहाँ पे जा रहा है OB, यहाँ तक ये पूरा है. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to distance traveled by the object along the y-axis. यदि distance traveled और जो displacement है, सब लोगों को याद होगा कि displacement क्या है, यदि वो दोनों सेम हैं तो हम लोग इसको velocity भी कर सकते हैं. It can be called as uniform velocity. क्या सेम होगा तब uniform velocity कहेंगे? बोलो. Displacement. जब magnitude of displacement equals to the distance traveled by the object
along the y axis, तब हम लोग इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कर सकते हैं। एक लाइन लिख लो यहाँ पर, और you can underline also, it is given in your book, page number 104, second column. From there you can understand also and you can underline also. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मैग्नीट्यूड भी बराबर है, लेकिन यदि दोनों बराबर हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट आल्सो, then it can be called as uniform velocity. तो अब बताओ तो क्या बराबर रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं? Magnitude of displacement. Magnitude of displacement equals to distance traveled by the body. हाँ, एक बार फिर से बोलना, displacement equals to magnitude of displacement equals to distance traveled by the object. Yes, very good. तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पीड के अलावा और क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, और फिर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहेंगे? Velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Uniform. वेलोसिटी, यस। यहाँ पर यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ to determine the speed of an object. To do so, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, इस बात को हम पता कर सकते हैं। To do so, consider a small part AB of the distance time graph shown in the figure. तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस AB कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक डिस्टेंस है A और B, यहाँ तक ये जा रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ तक ये जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं स्मॉल पार्ट दैट इज AB, वो पूरा जो लाइन है उसका स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट A से, ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से एक पैरेलल ड्रॉ किया, और दूसरा लाइन क्या ड्रॉ करना है? एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, और पॉइंट बी से ड्रॉ करना है एक लाइन जो कि इसके पैरेलल होगा। जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस है, उसके पैरेलल। तो जो पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस यानी कि टाइम जो है उसके पैरेलल चलेगा, और जो बी से ड्रॉ करेंगे लाइन, ये चलेगा हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है ना? Yes, ma'am. इस चीज को शुरू से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, वी हैव ड्रॉन these two lines meet each other at the point C. तो यहाँ पे जहां पे मीट कर रहा है वहां पर हम लोग C नाम दे देते हैं। Next, now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1. हमने यहाँ पर T1 और T2 को मार्क नहीं किया है, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं T1। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर पर, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करना है। Here T2, this one is T1 and this one T2। ये नजर आ रहा है T1 T2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, T1 T2, ठीक। These two lines meet each other at the point C to form. So on the graph AC denotes the time interval T2 minus T1. AC जो है यहाँ पर ये हो गया AC, ये टाइम इंटरवल डिनोट कर रहा है T2 minus T1, while BC correspond to the distance S2 minus S1। और ये जो BC है, this one shows as, यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो इसको हम S1 मान लेते हैं, और जो यहाँ से जा रहा है यहाँ पर that one is S2।
थोड़ा सा डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं हम लोग उसको सही कंसिडर करेंगे. Then we can see from the graph that as the object moves from the point A to B, ऑब्जेक्ट जब पॉइंट A से B की ओर मूव करता है, it covers a distance S2 minus S1. कवर करता ना है, ये पूरा डिस्टेंस नहीं शो कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन वो डिस्टेंस कवर करता है. ठीक. और टाइम यहाँ पर देखा कि यहाँ से यहाँ तक है टाइम, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिए हैं, देख लो. ठीक. और यहाँ पर का नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और इसको कर देते हैं क्लियर. तो ये हो गया S2 और ये हो गया S1. ठीक. S1 एंड S2 इसको हम लोग देखेंगे. ये जो है S2 तुम्हारा इसके बराबर है, इसको कंफ्यूज नहीं करना. यहाँ पर S2 जो है बराबर है. ठीक. अब हमें जो डिराइव करना है, द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम लोग उसका स्पीड लिखते हैं. यहाँ पर देखो, एक पार्टिकुलर समय में हम लोग स्पीड कंसीडर कर रहे हैं. इस ग्राफ पे बॉडी का स्पीड कहाँ पे क्या है, कहीं पर भी हम लोग स्पीड इसका निकाल सकते हैं. ठीक. तो हमने अभी जो स्पीड जो कंसीडर कर रहे हैं वो इस डिस्टेंस को लिया है. ठीक. इतना टाइम में वो कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस को हमने लिया. ए भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको टाइम एसी में कवर कर रहा है, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे थे. यहाँ पर स्पीड निकाल रहे हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, v जो है मान लो कि ये स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है, इट इज कवर्ड S2 minus S1 upon T2 minus T1. T2 minus T1. देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. वेरी सिंपल. तो उसको हमने जो डिस्टेंस कवर हुआ है या टाइम टेकन है उसको इस तरह से शो कर दिए. वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. यदि कोई एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका बढ़ रहा है स्पीड, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो है उसका बढ़ रहा है, तो भी हम इसको निकाल सकते हैं. वी कैन प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी कैन प्लॉट द ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ देयर इज टेबल 8.2 हियर. 8.2 पीछे की तरफ है, जरा उसको भी नजर कर लें हम लोग. कहाँ दिया है 8.2? 8.2 काफी पीछे दिया हुआ है. उसमें क्या कह रहा है, उसको तो हम ध्यान ही नहीं दिए. ठीक है, उसमें 8.2 में दिया है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन व्हिच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट, डिस्कस एंड श्योर. तो वहां पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जितना है उतना देखते हैं. टेबल 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds. Now let us see here. एक टेबल नहीं, तुम्हारा उसी पेज पे दिया हुआ है, 104 पेज पर ही नीचे दिया हुआ है. उस टेबल को हम लोग बनाते हैं, इतना दूर रखते हैं, और एक ऐसे बॉडी का देखना है जिसका कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. सो दिस वन इज क्लियर. यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नो मैम. ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है. अब आगे हम लोग देखेंगे ऐसे बॉडी के लिए जिसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. तो सबसे पहले टेबल बना लिया जाए उसका. यहाँ पर 2 कॉलम लेना है, टाइम इन सेकंड्स, और दूसरा है डिस्टेंस इन मीटर्स. शॉर्ट में ही लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा.
और यहाँ पर करना है इट वन इज यहाँ पर बुक से मार्क कर देते हैं टेबल 8.2 यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल डिस्टेंस कवर्ड traveled by a car at regular time intervals. तो यहाँ पे देखें कौन कौन सा है सब मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 7 लेट अस फिल इट अप टाइम जो है 0 सेकेंड्स हुआ यहाँ पे फिर 2 है 4 है और फिर है 6 8 10 और 12 ठीक ये हुआ सेकेंड्स में टाइम डिस्टेंस ट्रेवल 0 meters 1 4 then 9 16 25 and 36 you see here one thing यहाँ पे टाइम जब 0 है शुरू में टाइम सेकंड्स में 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 2 seconds 1 minute, 1 1 meter. ठीक and in 4 seconds how much distance covered 4 4 meter. meters. ठीक है तो यहाँ पे दोनों को जब माइनस करते हैं हम लोग तो 2 सेकंड हुआ ठीक इन दोनों के बीच में जब हम लोग 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 सेकंड्स आता है तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है यहाँ पे ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक बोलो अरे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे 1 2 4 3 2 seconds how much distance covered 3 meters. हाँ बिल्कुल वेरी गुड कौन बोला 3 meters मैम आयुष कश्यप. वेरी गुड आयुष सो डिस्टेंस कवर्ड इज 3 meters देखो भाई बाकी लोग भी कोशिश करेंगे बोलने का इसको यदि बारीकी से ध्यान देते हो तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा और नहीं शुरू से इस पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा अब हम लोग यहाँ से यहाँ की ओर चलते हैं यहाँ से यहाँ की ओर चलते हैं ठीक अब ये डिफरेंस जो है 6 और 4 में कितना सेकंड है माइनस करेंगे तो 5 meters. कितना 5 meters. नो 6 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मैम 2 सेकेंड 2 seconds ठीक यहाँ पर भी 2 सेकंड था और यहाँ पर भी 2 सेकंड है और यहाँ पर भी 2 सेकंड है ठीक ध्यान दो क्योंकि हमें देखना है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ये तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है तो इन 2 सेकंड में अब डिस्टेंस ट्रेवल जो है कितना है बोलो d is equal to what मैम 5 मीटर वेरी गुड 5 meters अब यहाँ पे आते हैं दोनों को माइनस करो टाइम क्या है हाउ मच टाइम तेज अरे 6 और 8 को माइनस करो ना कितना हो जाएगा 2 कितना हो 2 जाएगा seconds. 2 seconds. अच्छा 2 seconds बिल्कुल यानी कि टाइम तो इक्वल इंटरवल है ठीक 2 seconds टाइम इक्वल्स 2 seconds एंड हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से मैम यहाँ 7 से यहाँ मीटर. तक यहाँ से यहाँ तक बताओ तो कितना डिस्टेंस है 7 मीटर. 16 7 मीटर में 9 को माइनस करेंगे तो 1 और 6 यस 7 meters वेरी गुड 7 meters अब इतने दूर में तुम लोग देख लो कि ये 2 सेकंड में 3 मीटर तय कर रहा है और पहले तय किया था 1 मीटर 0 से वहां तक 1 मीटर था पहले 3 मीटर तय किया उसके बाद 5 मीटर गया उसके बाद 7 मीटर गया तो इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है बोलो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है इसको यूनिफॉर्म कहेंगे नॉन
नहीं कहेंगे। नो मैम। यूनिफॉर्म तब कहलाता है, यूनिफॉर्म तब कहलाता है जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो, तब यूनिफॉर्म कहे। यहाँ पर टाइम तो सेम है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो तो बिल्कुल भी डिफरेंट है। अब यहाँ पर ही देख लें हम लोग, ये 2 सेकंड्स में यहाँ से यहाँ तक 25 में 16 माइनस करो, कितना होगा? 16 माइनस कर दो यहाँ पर, 9 तो 9 मीटर। 9 मीटर तय किया यहाँ, ठीक। अब यहाँ से यहाँ कितना तय किया? ये भी 2 सेकंड है। 11 मीटर। 36 में 25 माइनस करते हैं, हाँ 11 मीटर तय किया। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल नहीं है। इसके लिए हम लोग को कैसे प्लॉट करना है ग्राफ? सो लेट अस सी हियर, यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो कहाँ तक वो शेयरिंग में जाता है, क्योंकि हर एक चीज बनाना पॉसिबल नहीं है। शेयरिंग में हम थोड़ा सा लगा नहीं रहे तो हो सकता है कि फिगर उल्टा आ जाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं है। तुम्हारे बुक में ही चलो ब्लैक बोर्ड पर दिखा दे, शेयरिंग में तो लग रहा है कि टाइम ले लेगा आते थे, तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम ही बना देते हैं, इसको मिटा दें और इसको बुक से कंसिडर करोगे फिर भी एक रफ जो है यहाँ पर शो कर देते हैं। लेट अस सी हियर, whatever you have plotted, let us plot it, this table in the form of a graph. यहाँ हम लोग लेते हैं 0 and this is the distance time graph, distance, and this one is the time, and axis we will not write it, so this one is in seconds and this one in meter. जो तुम्हारे बुक में है उसी को हम लोग शो कर रहे हैं। तो 0 से जब ट्रेवल किया यहाँ पर 0 1 2 4 6 8, देन 8 के बाद 10 और 12, दो का डिफरेंस में कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाता है 5 के डिफरेंस में, 5 5 15, ये 10 हुआ, 15, ये हो गया 20, इतने तक रहने दो। अब जब शुरू में जब ट्रैवल किया है, मतलब 2 सेकंड में 1 मीटर का ट्रैवल किया है। यहाँ पर कुछ लिख दें, this one is 5, this one 10 and 15 and 20, और ये हो गया हमारा 2 4 6, ये t जो है ना, so this one is the time here, 6 8 10 12। तो इसको 5 डिवीजन में बांट दें। सो हियर इन 1, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर मान लो कि 1 है, यहां से यहाँ बॉडी जो है पहले जा रहा है, ठीक, 2 सेकंड में। दूसरे में जब एक मिनट थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया ना, ओके, लेट अस सी हियर, in other 4 seconds it is covering 1 meter of distance, नहीं 4 meters कर रहा है, 4 meters। यहाँ पे लो, अभी भी साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट in 2 seconds it is covering 9 meters, यहाँ पर 10 है, 10 के नीचे यहाँ पर 9 आ जाएगा, so it is covering here। then the next 16 meters, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा 9 वाला जो है। अदर that is 16 meters, 12 हुआ, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाता है 16। देन हियर 16, यहाँ पे है तुम्हारा 14 15 16, ये जा रहा है यहाँ। सो 2 सेकंड में, यानी कि 8 सेकंड
वो यहाँ पर 6 सेकंड था ना, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर ये मार्क करना था, इसको ये नहीं रहेगा। और उसके बाद है 8 सेकंड में यहाँ पे 8 सेकंड, ये ठीक है। इसको बढ़ाते हैं हम लोग, 16 पे जा रहा है, 16 पे जा रहा है। तो तुम्हारे जो बुक में जो लाइन गया है वो करीब इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बन सका है, इसीलिए क्लियर नहीं नजर आ रहा है। दिस वन, द फिगर इज लाइक दिस, इजंट इट? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? क्या वो स्ट्रेट लाइन है? बोलो। नहीं है। इसमें No, ma'am. ये जा रहा है ना, ऐसे करके जाना चाहिए। थोड़ा फिगर सही नहीं बन पाया है, शायद हम लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये पैराबोला की तरह देख लो, कर्व लाइन की तरह जा रहा है, ठीक। तो दिस शोज दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करें, लेट अस सी हियर। नहीं, ये नहीं करना था। मोर में